Ram Janmabhoomi Ayodhya has witnessed a massive surge in devotees as the temple town marked the second anniversary of Pran Pratishtha at the Ram Mandir. On this auspicious occasion, thousands of devotees from across the country arrived in the temple town to offer prayers, filling the air with devotion, faith and spiritual fervour. Many pilgrims expressed the beginning of the new year with the darshan of Lord Ram, holding special spiritual significance and bringing peace, positivity and divine grace into their lives. Raksha Mantri Rajnath Singh, UP Chief Minister Yogi Adityanath held prayers at the Ram Mandir complex yesterday as they hoisted a flag at the Annapurna Mandir, marking the second anniversary of the Pran Pratishtha. Earlier, they offered prayers at Hanuman Gadi as well, and the Raksha Mantri has also participated as the chief yajman or the chief host as the Pran Pratishtha Dwadashi's rituals. Now, the event yesterday followed by a program on the 25th of November when the Prime Minister had hoisted a saffron flag on top of the Ram Mandir, marking the formal completion of the construction. Now, addressing the people on this auspicious occasion, Rajnath Singh said witnessing Lord Ram seated in his divine temple felt like the culmination of a lifetime. हम सभी पिछले अनेक पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्मे हैं और ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है कि हम यह दिव्य दृश्य प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस दुनिया से जाते समय हम सबके लिए सबसे बड़ा संतोष का विषय होगा, मेरे बहनों भाइयों, कि हमने अयोध्या में अपने राम को 2 साल पहले आते हुए हमने देखा है। सैकड़ों वर्षों से अयोध्या अपने राम का इंतजार कर रही थी। न जाने कितनी आंखें अपने प्रभु का इंतजार करते हुए पथरा गई थी, लेकिन हमारी आंखों ने वह दृश्य देखा। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो। अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। Now, that was Chief Minister Yogi Adityanath highlighting how Ayodhya has transformed over the years and also giving a message to the Sanatan Beta, saying that no one is above the Sanatan Dharma. But the state of Uttar Pradesh has witnessed a fascinating shift this new year. The tourism department of UP government claimed that millions of you turned out at the religious places like Ayodhya, Kashi and Mathura on New Year Eve celebrations. And this seems to be a new trend unlike the past, when youth used to go to hotel, restaurants or even nightclubs and hill stations to celebrate the incoming of the new year. Now, when it comes to the government's press release, the development of the religious tourism and especially under the leadership of Yogi Adityanath seems to be attracting youth to temple towns in large numbers. The government claimed that between 29th and 30th of December alone, more than 5 lakh tourists reach Ayodhya to have darshan of Lord Ram. And in the last 3 days, 10 lakh tourists have visited Kashi Vishwanath corridor and more than 3 lakh devotees have visited Mathura. Times Now also visited Kashi Vishwanath Mandir, which is witnessing a massive rush this New Year. कि साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को लगभग 10 लाख की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और बाबा विश्वनाथ का आभार लेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी बाबा का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं या फिर दर्शन करके लौट रहे हैं। हाथों में देखिए ये प्रसाद है, ये माला फूल है, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है और हर किसी को इंतजार इसी बात का है कि बाबा का आशीर्वाद कब मिलेगा। सवाल इस बात का भी है कि नए साल पर जब लोग हिल स्टेशन पे जाते थे, गोवा जाते थे, कुल्लू जाते थे, मनाली जाते थे, पब में जाते थे, लेकिन अब इतना बड़ा बदलाव आया है कि वो आध्यात्म की ओर उनका रुख होता जा रहा है। आध्यात्म, और बड़ी बात यह है कि इसमें जो युवा वर्ग है उसकी भी संख्या अच्छी खासी नजर आ रही है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? देखिए, सबसे पहले बाबा की इस नगरी में, बाबा की पावन धरती पर हर हर महादेव। और देखिए, परंपरा बदली है, लोगों में विचार बदले हैं, लोगों के जो भावनात्मक विचार थे उनमें परिवर्तन हुए हैं। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, हम सनातन की ओर
पब्लिश हुए हैं। सनातन की ओर कितना बड़ा बदलाव है कि नया साल की शुरुआत। पहले लोग अंतिम साल के अंतिम और 1 जनवरी को पिकनिक मनाने जाते थे। आज आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बनारस दिव्य काशी भव्य काशी की महता को, बाबा को चरण स्पर्श करने, बाबा को प्रणाम करने, बाबा को पूजा करने के लिए लोग पहुंच रहे। कहाँ? हम महाराष्ट्र वर्धा से आए हुए हैं। महाराष्ट्र जी जी जी। नए साल पर, नए साल के इसमें पहला साल का पहला दिन बाबा महाकाल के इसमें जाना चाहिए, भोले बाबा के दरबार में जाना चाहिए। हमारी यही इच्छा है। कोशिश यही की जा रही है कि बिल्कुल शांति के साथ इस बार नए साल का आगाज हो, किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो और लोग बिल्कुल धार्मिक मनोभाव से इस साल नए साल का आगाज करें। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 24 दिसंबर से ही लगातार भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और 24 दिसंबर को ये कॉल ले लिया गया था कि सभी प्रकार के जो विशेष दर्शन हैं, जो विशेष सुविधा देने वाले दर्शन हैं, इसके जो अनुरोध आते हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी दर्शनार्थियों को एक समान दर्शन व्यवस्था के अंतर्गत एंड टू एंड बैरिकेडिंग लगाकर उसके भीतर से दर्शनार्थियों का प्रवेश होगा और धाम के भीतर सभी को झांकी दर्शन कराए जाएंगे और यही व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। दिनांक 26 दिसंबर से निरंतर यहाँ पर पानी के जो स्टॉल हैं, ORS घोल के स्टॉल हैं, मेडिकल हेल्थ वाली जो हमारी डेस्क होती है, खोया पाया केंद्र है, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट कर दी गई हैं और जो बहुत ज़्यादा भीड़ के समय जो हमारा प्रोटोकॉल 3 लाख से ऊपर वाली भीड़ के लिए रहता है, SOP हमने बना रखा है, वो पूरा एक्टिवेटेड है और इसमें उसी के अंतर्गत सारे दर्शनार्थियों को सुविधापूर्वक दर्शन प्रदान किए जा रहे हैं।